میں نے ہر مخلوق کو اس کی طاقت کے مطابق بوجھ دیا ہے، طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں دیا ہے۔ لہذا یہ جو اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمارے اوپر جو بوجھ ڈالا ہے یہ ہماری طاقت کے مطابق ہی ڈالا ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی نے اسی بوجھ کو اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ اللہ تبارک و تعالی نے دوسری جگہ اس بوجھ کو امانت کے نام سے موسوم کرنے کے بعد کہا کہ اس انسان نے اس بوجھ کو خود اٹھایا۔ انہو کان ظلوما جہولا، یہ انسان تو بڑا جاہل اور ظالم انسان تھا۔ اب یہ انسان جو ہے کیوں ظالم، کیوں جابر ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اندر دو چیزیں رکھی ہے۔ پہلے ہی میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے انا ہدیناہ السبیل، ایک سوچنے کی، ایک سمجھنے کی ایک صلاحیت عطا کی ہے جسے عقل کہتے ہیں ہم، اور اس عقل کے مطابق ایک کام پھر آگے کام کرنے کی صلاحیت دی ہے۔ یعنی ایک اللہ تبارک و تعالی نے عقلی قوت، دوسری عملی قوت اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کو عطا کی ہے۔ فرمایا انہو کان ظلوما جہولا، یہ انسان تو جب انسان اپنے اندر عملی قوت میں بے اعتدال ہو جائے، جو اللہ تبارک و تعالی نے اسے عملی قوت دی تھی، کرنے کی قوت دی تھی، جب وہ اس کے اندر صحیح طور پر عمل پیرا نہیں ہوتا ہے تو یہ انسان ظالم بن جاتا ہے۔ اور اگر یہ انسان اپنی عقل و ذہانت کا صحیح استعمال نہیں کرتا ہے، اس میں بے اعتدال ہو جاتا ہے، تو یہ انسان جاہل بن جاتا ہے۔ انہو کان ظلوما جہولا، یہ انسان جاہل بھی ہے، یہ انسان ظالم بھی ہے۔ دوسری جگہ فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہا تمہارے سامنے تاریخ بطور گواہ کے میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں تمہارے سامنے تاریخ کو بطور گواہ پیش کر رہا ہوں۔ تاریخ کو میں نے تمہارے سامنے گواہ کے طور پر پیش کیا ہے کہ انسانیت دنیا میں جب بھی آئی ہے ہمیشہ خسارے میں رہی ہے، یہ ہمیشہ انسان خسارے میں رہا۔ کون؟ کہا ان دو زندگیاں دنیا میں بسر ہوئی، ایک ظالم و جاہل بن کر اور ایک عالم و عادل بن کر۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے کہا ان دو زندگیوں میں سے وہ جاہل اور ظالم والی زندگی ہو یا عالم و عادل والی زندگی ہو، عدل و انصاف والی زندگی ہو، علم و عدل والی زندگی ہو، دو میں سے آپ دیکھیں گے کون سی زندگی کامیاب ہوئی ہے، کون سی ناکام۔ ان الانسان لفی خسر، کہا زمانہ آپ کے سامنے بطور گواہی پریکٹیکلی گواہی دے رہا ہے۔ آپ نے نمرود کو بھی لینا ہے، نمرود کی زندگی کو بھی آپ پڑھو، اور آپ ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو بھی پڑھو، آپ فرعون کی زندگی کو بھی پڑھو، آپ موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو بھی پڑھو۔ ان میں سے ایک ظلم و جہل کی زندگی بسر کر رہا تھا، ایک عدل و انصاف کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ کامیاب کون ہوا ہے کہ یہ زمانہ آپ کے سامنے، یہ تاریخ زمانے کی آپ کے سامنے بطور گواہی پیش کر رہی ہے کہ جب بھی انسان نے اپنے عقل، جب بھی اس انسان نے اپنی عقل کے اندر اعتدال لایا ہے تو یہ انسان عالم بن گیا ہے۔ الا الذین آمنوا، جس کو قرآن نے ایمان کے ساتھ جو ہے وہ موسوم کیا، اس کا معنی یہ ہے کہ یہ انسان جب بھی جاننے والا بنا ہے تو یہ جاہل سے نکل کر عالم بن جاتا ہے، اور پھر اپنے اس علم کے مطابق
अपनी प्रैक्टिकली लाइफ को अगर इल्म के मुताबिक अदल पर ले आता है तो ये इंसान जालिम से निकलकर आदिल बन जाता है। जाहिल से निकलकर आलिम बन जाना वो ईमान की सिफत इल्लल्लज़ीना आमनू, अगर इंसान की इस ज़हनी क़ुव्वत में, अक़ली क़ुव्वत में एतदाल आ जाए तो ये इंसान आलिम बन जाता है। अगर अमली क़ुव्वत में अदल आ जाए तो ये इंसान आदिल बन जाता है जालिम के मुकाबले में। अब अदल क्या है, अदल की तारीफ क्या है? अरबी में अदल कहते हैं तोलने को, बराबर तोलने को। वज़अ शै फी महल्लिही, किसी चीज को उसके मकाम पर रखना। इसके मुकाबले में जुल्म है कि वज़अ शै फी गैर महल्लिही, किसी चीज को इसके मकाम से हटा देना, ये जुल्म हुआ करता है। अब कुरान ने हमें किस चीज का हुक्म दिया है? इन्नल्लाह यअमुरु बिल आदल वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा। कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि इअदिलू व अक़रबु लित्तक़वा, तुम एतदाल में आ जाओ, यही तक़वा के करीब है। अब मैंने आपके सामने कहा कि अदल के मुकाबले में जुल्म आता है। जुल्म किसे कहा जाता है? जुल्म कहता है वज़अ शै फी गैर महल्लिही, किसी भी चीज को इसके मकाम से हटा देना। कुरान ने कहा अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, जो लोग ईमान वाले बन जाते हैं, जानने वाले बन जाते हैं, उनको मैंने क्या किया? युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, मैंने उनको अंधेरों से निकालकर रोशनी में लाया। और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जो लोग, जिन लोगों ने कि अपनी जिंदगी को, अपने आप को इस अदल से हटाकर जुल्म की तरफ आ गए, उनके बारे में फयुखरिजूनहुम मिनन-नूरि इलज़-ज़ुलुमात, उनकी जिंदगियां नूर से, हक़ानियत से, हकीकत से दूर होकर और अंधेरे की तरफ चली जाती हैं। जुल्म क्या है? जुल्म एक अंधेरा है। और अंधेरा कब आता है? अंधेरा आता है जब रोशनी खत्म हो जाती है। और इल्म जो है वो नूर, वो किससे? वो इल्म से फैलता है। लिहाजा हमें क्या करना है? कुरान की पहली ही वही क्या थी? इक़रा, उठिए, खड़ा हो जाइए। क्यों? का दुनिया से इस जुल्म को, इस तारीकी को खत्म करना है। किससे करना है? इक़रा से। इक़रा से तारीकी खत्म होगी। अगर आज हमने माशरत के अपनी सियासी जुल्म जबर को खत्म करना है इक़रा से। हमने देखना है कि हमारी सियासत के अंदर जुल्म है, बेअतदाली है, तो आप इक़रा से आप उठिए। नौजवान पढ़े लिखे लोग आइए सियासत के अंदर और इस जो है तारीखी को नूरानियत से तब्दील करें। अगर माशरत के अंदर, मार्केटिंग के अंदर हमारी जो है वो माशी निज़ाम तबाह हो चुका है, जुल्म के अंदर आ चुका है, इसके अंदर हमें पढ़े लिखे लोगों को, पढ़े लिखे तबके को जाना होगा। वहां पर भी इल्म की बुनियाद पर इस माशी निज़ाम को मुस्तहकम करना होगा। किससे? जुल्म से नहीं, अदल से। वहां पर भी अदल के इस तराजू से, अदल से जो है अपने माशी निज़ाम को मुस्तहकम करने की ज़रूरत है। जो चाहिए आपका मजहबी निज़ाम, आपका सियासी निज़ाम, समाजी निज़ाम, अखलाकी बहरान, हमारे यहाँ इस वक्त अखलाकी बहरान इंतहाई उरूज पर है। आप देखेंगे ड्रग्स में हमारे नौजवान मुब्तला है और हमारे इस वक्त ड्रग्स के अंदर मुब्तला होने वालों में 70% से ज्यादा लोग, बच्चे ऐसे हैं कि जिनकी उम्र 30 से कम है और उसमें से 14% हमारी लड़कियां भी मुलव्विस हो चुकी हैं जो ड्रग्स के इंजेक्शन लगाती हैं। ये इंतहाई खतरनाक हमारे लिए है। लिहाजा अगर हमने इसको खत्म करना है तो हमने क्या करना है? इल्म की रोशनी को फैलाना होगा। इल्म की रोशनी फैलाने के लिए हमें क्या करना है? हमने देखना है कि कौमें कब कामयाब हुई, कौमें कब नाकाम हुई। इसके लिए हमें हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ही
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ना होगा, सीरह को सामने रख कर पढ़ना होगा, ताकि हमें मालूम हो कि हर ज़माने में जब अंबिया आए तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी लोगों के सामने रखी। फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरा मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून, तुम अगर अकल वाले इंसान हो तो मेरी ज़िंदगी से आप मेरी प्रैक्टिकली लाइफ जो 40 साल हुजूर ने फरमाया मैंने आपके सामने बसर की है, देखो इसमें कहीं आपको कोई जो है वो जुल्म और जहल की कोई चीज मिलती है, इसमें आपको कहीं बेअतदाली नजर आती है। अगर नजर नहीं आती है तो इसको आपको नमूना बनाना होगा। अगर आपने देखना है कि कौन मॉडल बन सकता है तो हमारी जिंदगियों के लिए मॉडल कौन है, वो अंबिया अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुआ करते हैं। हमें क्या करना है, आज अगर देखना है कि अपनी जिंदगियों के अंदर एतदाल लाना है, मुख्तसर में इतना ही अर्ज करूंगा कि अगर जिंदगियों के अंदर एतदाल हमने लाना है, हमारी जिंदगी सियासी लिहाज से भी अदल पर आ जाए, हम समाजी लिहाज से भी अदल पर आ जाए, और हम जो अखलाकी लिहाज से भी अदल पर आ जाए, जहनी लिहाज से भी हम अदल पर आ जाए, तो हमें क्या करना है, कम अज कम हमें अपने इल्म के मुताबिक देखना है कि हमें इक़रा की तालीम को नहीं, तालीम को फैलाना होगा। तालीम के बगैर ये हमारे अहदाफ मुकम्मल नहीं हो सकते हैं। लिहाजा इतना ही मैं आपके सामने इख्तिताम में कहूँगा कि तालीम ही एक ऐसी चीज़ है जो इनकलाब ला सकती है हमारे मुल्क में। लिहाजा तालीमी इनकलाब लाओ, हमारा मुल्क भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ सुपर पावर बन सकता है। इस वक्त अगर हमने अपने आप मुल्क को डिजिटल इंडिया बनाना है, सुपर पावर बनाना है, अपने इंडिया को, अपने मुल्क को बनाना है, तो इसके लिए एक ही जरिया है, वो तालीम। तालीम ही हमारे मुल्क को आगे ले सकती है।